So as we discussed in a TensorFlow introduction, there are three different things: constant, जिसकी value हम change नहीं कर सकते. Second thing is placeholder. Placeholder in the sense what? We have to put the value of that placeholder. Okay, that's nothing but a variable type of thing, but we will not use a word variable for placeholder. Placeholder in the sense that can actually read the data from user, or it can accept the input actually. And what about variable? Variable मतलब क्या? उसका वैल्यू यूजर पुट कर सकता है एंड टेंसर फ्लो में जो अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो उनकी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करेगा. दैट इज एक्चुअली अ वेरिएबल. ओके, सो हाउ टू क्रिएट ए कांस्टेंट. सो अगर मैंने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट किया है, लाइक इंपोर्ट टेंसर फ्लो एसटीएफ, import TensorFlow STF, then ts.constant is a predefined class, and that we have to just pass the value as well as we can just set the data. So यहाँ पे first example में हमने value set की है, and with the data type actually tf.constant 3.0, dtype equals to tf.float 32 in the sense 4 bytes of resolution. And finally अगर आप इसको print करने जाओगे, then actually it just print constant 0, shape is nothing, and dtype is float 32. Some basic information is just print. But if you want a value, उसका value अगर आपको print करना है, then what we have to do? We have to firstly create a session object, and using that session we have to call the run function. Okay, so here we just create a session object in actually section number 4, and we call the run function and we pass a list of constants we just passed. Okay, and we know what is TensorFlow. TensorFlow actually it just works on a graph base. Graph base in the sense internally it just create a graph. मतलब node बनाएगा and node के अंदर connection generate होगा. मतलब actually internally वो एक graph create करेगा, and whenever you will just call this run function, उस graph को execute करेगा. That's the concept actually. Okay, so here we have 3.0 and 4.0. That's actually value of our constant. Now what about the placeholder? So placeholder in the sense what? Starting with the value initialize नहीं करने, then it's fine. So we just did one thing. हमने placeholder create किया, हमने कुछ data type fix की थी, and हमने उस placeholder का use करके एक equation बना, add or not is equals to a plus b. So we discussed that also how it works. So हमारे पास एक a नाम का यहाँ पे node होगा, b नाम का एक node होगा, and दोनों के दोनों node actually plus से इसको connected है. Okay, and इस बार सबका नाम हमने रखा है add or not. Fine. So what the placeholder? Placeholder in the sense it can accept, it has actually power, it has an ability to access the data to just get the input from the user. तो मैं a और b का कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, मैं उसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 0 डायमेंशनल डेटा पास कर सकता हूँ, और वो डेटा के हिसाब से मुझे एडर नोट की वैल्यू जनरेट हो. So let me just pass some data. For that हम लोग यहाँ पे एक्चुअली डिक्शनरी यूज कर रहे हैं. That is this technique is actually known as fitting dictionary. तो हमने a colon 3. What is that a? That's my placeholder name. B colon 5. Like 4.5. That is also my b is nothing but an actually my placeholder name. And हम लोगों ने run नाम का function call किया. And what is the resultant? Resultant is nothing but add node. So add node के लिए a और b मेरा input है. तो जैसे हम value pass करेंगे वो इस actually tree को, इस graph को execute करके add node की value generate करेगा. Okay, and this actually 7.5. In a similar way अगर हम 1 dimensional data pass करते हैं तो 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, मतलब first element, second element, उनका एडिशन होकर अपने को आंसर जनरेट होगा. दैट्स इट. अब एडर नोड के ऊपर हमने एक एग्जांपल और लिया था कि ट्रिपल मल्टीप्लाइड बाय 3 किया था, मतलब इसको एक और आगे कुछ कन्वर्ट किया, लाइक इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 किया. हियर आई हैव अ स्टार एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3. एक और नोड ऐड किया. सो इसका भी आप आंसर जनरेट करा सकते हो, बट इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? इनका प्लेस होल्डर कौन है? प्लेस होल्डर आना चाहिए a एंड b. ये इसमें 3 की जगह अगर आपके पास c होता, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर था, दैट्स नथिंग बट add underscore triple, add triple, ये जो हमारा वेरिएबल का नाम था, उसके अंदर मुझे सी का वैल्यू भी पुट करना पड़ता है अगर सी होता तो. ओके, सी अगर मैंने कुछ एज ए प्लेस होल्डर यूज किया होता तो, बट दैट्स एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 3. सो हम डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको प्लेस होल्डर मतलब लाइक फाइनली एड एंड ट्रिपल की वैल्यू गेट हो जाएगी. सो दैट्स दैट. नाउ व्हाट इज वेरिएबल? सो वेरिएबल इन द सेंस व्हाट? वेरिएबल इन द सेंस जिसकी वैल्यू मुझे ट्रेन करनी है. ओके, सो फाइनली व्हाट वी विल डू, हम लोग एकदम सिंपल सा लाइक एक इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c. ओके, y इक्वल्स टू mx प्लस c. मुझे इस तरीके से कुछ चाहिए, लाइक लेट अस से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, बट m की जगह मैं w ले रहा हूँ. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, एंड इन दिस इक्वेशन मैं किसी एक बंदे को वेरिएबल लेने वाला हूँ. ओके, सो कंसीडर लाइक c and w आर द कांस्टेंट. In this w
and C are the constants. X is a variable. Okay, X is a variable. Y is nothing but an resultant. मतलब मेरा इक्वेशन मुझे कुछ डेवलप करना हो तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा. I have a X, otherwise let us say W. Here we have X. तो इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है. तो ट्री अगर डेवलप करे तो यह मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन. जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसका मैं सी के साथ कनेक्शन करूंगा. एंड जो ये कनेक्शन आया उसका नाम हम y रखने वाले हैं. इसका नाम y होगा. और ये कैन से द लीनियर मॉडल. आप अपने हिसाब से उसका नाम सेट कर सकते हो. मैंने y रखा. ओके, सो गाइस इसमें जो ये x है दैट इज माय वेरिएबल. तो मुझे c है दैट्स एक्चुअली कांस्टेंट. c is a constant or I can say that w is a constant. Otherwise we can say that अगर चलो उल्टा करते हैं, like w और c की वैल्यू मुझे एक्चुअली ट्रेन करवानी है. तो ये मेरा वेरिएबल होगा. दिस इज माय वेरिएबल एंड दिस इज नथिंग बट अ प्लेस होल्डर. ये मेरा इनपुट होगा. कंसीडर दिस इज फीचर वैल्यू. दिस इज फीचर वैल्यू जो मुझे चेंज नहीं करनी है, जो मुझे इनपुट करना है. एंड w एंड c आर नथिंग बट अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे ट्रेन करनी है. तो अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं, रिग्रेशन मॉडल इन द सेंस आउटपुट में न्यूमेरिकल वैल्यू जो अपना क्लास लेवल है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. क्लासिफिकेशन में वो एक क्लास लेवल था, मतलब लाइक आउटपुट विल बी 1 0 a b c इन शॉर्ट फिक्स नंबर ऑफ आउटकम्स. एंड रिग्रेशन इन द सेंस न्यूमेरिकल वैल्यूज आर देयर एंड n नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी देयर. रिग्रेशन में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बट स्टिल अभी ऐसा मान के चलिए कि हमारे पास लाइक कुछ x की 4 वैल्यू थी, उसके हिसाब से y की कुछ 4 वैल्यू हमारे पास आउटपुट में ऑलरेडी डिक्लेयर थी. x के कोई 4 वैल्यूज थे, उसके हिसाब से y के वैल्यूज भी थे. लाइक कंसीडर x का वैल्यू 1 2 3 4 ये मेरा इनपुट होगा. ओके, एंड y का वैल्यू हम मान लेते हैं 0 -1 -2 -3. ओके, ये y का एक्चुअल वैल्यू था. एक्चुअल वैल्यू इन द सेंस लाइक ट्रेनिंग टाइम पे. दिस इज एट द ट्रेनिंग टाइम पे मुझे y का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल था. मेरे पास y का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल था. x का वैल्यू मैं इनपुट करूंगा, मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो इस तरीके से मुझे वर्क करना है. सो नाउ व्हाट वी विल डू. तो मुझे इस तरीके से कुछ लाइक इक्वेशन सेट करना हो तो इस इक्वेशन में w एंड c आर द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे गाइस. टू tf dot variable and c is equals to tf dot variable. What about x? It is a placeholder, so I can say that x equals to tf dot placeholder. And इनको कनेक्ट कैसे करना है. So what we will say, इसको कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे. y equal to y इन द सेंस आप कुछ भी नाम रखिए. अपने एग्जांपल में हमने लीनियर एंड मॉडल लिया था. So y equals to w into x plus c. ओके, एंड w एंड c का स्टार्टिंग वैल्यू मुझे सेट कर देना था. लाइक कुछ भी रख दीजिए. हम लोगों ने एग्जांपल में -3 और 3 रखा. So here I have tf dot variable and this is actually 0.3. Sorry, that is 0.3 w का वैल्यू. b is a variable, so यहाँ c की जगह b है. ये b है. ओके, कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट के लिए यहाँ पे b रखा. दैट इज नॉट कांस्टेंट एक्चुअली, बट दिस इज y इंटरसेप्टर. ओके, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला इक्वेशन था, यहाँ पे wx प्लस b लिया हुआ. दैट्स फाइन. नाउ व्हाट इज दैट x? दैट इज प्लेस होल्डर. दैट इज वेरिएबल का मतलब. लेट मी वन सेकंड रिकॉल. वेरिएबल का मतलब क्या हुआ. जो चीज खुद से ट्रेन होने वाली है. व्हाट अबाउट x? x इज नथिंग बट अ प्लेस होल्डर जो एज ए यूजर से इनपुट फेच करेगा. ओके, सो इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? अब मुझे क्या करना था. मुझे अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराना है. प्लेस होल्डर और कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती. मुझे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना. फॉर दैट वी रिक्वायर ग्लोबल इनिशियलाइजर. सो हियर वी हैव ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइजर एंड यू हैव टू जस्ट रन दिस. मैंने वेरिएबल का नाम मतलब इसको भी एक ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर किया इनिट में. इनिट को मैं रन कर रहा हूँ. तो सेशन डॉट रन इन द ब्रैकेट इनिट. So right now this variable will be initialized. Now अभी right now मैं कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज नहीं करने वाला. मुझे सिंपल सा काम करना था. लिनियर मॉडल. ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे. सेशन डॉट रन इन द ब्रैकेट लिनियर मॉडल कोमा डिक्शनरी. डिक्शनरी में कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है सर. ओनली एक्स. तो एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करें. So session dot run. Session means what? SESS मतलब क्या. It is an object of session. It is an object of session. Here we just create. यहाँ पे हमने create किया था session section number 4 में. Okay, SESS is equals to TF dot session. Fine. So like here we have. Fine. Okay. So section dot run. Yeah, अभी section number 40 में है. फाइन सर. हेलो. हाँ सर. हाँ सर, स्क्रीन थोड़ा चिपक के आ रहा है.
ओके थोड़ा स्लोली चलेंगे. ओके, लाइन नंबर 14 इज डन. सेशन डॉट रन लीनियर मॉडल और एक्स की वैल्यू हमने 1 2 3 4 इनपुट. ठीक है. सो एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 इनपुट करेंगे गाइस. देन व्हाट वी विल हैव 1 2 3 4 इनपुट करेंगे, हम लोग को y का कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल जाएगा. ओके, एक्चुअल वैल्यू मान के चलते हैं कि हमारे पास 0 -1 -2 -3 है. सो प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, लेट मी चेक. प्रेडिक्शन क्या आ रहा है. सो प्रेडिक्शन इज एक्चुअली लाइक, लेट मी जस्ट चेक द आउटपुट. सो प्रेडिक्शन अगर लाइन नंबर 40 का देखें तो 0 0.3 0.6 एंड 0.9. सो 0.3 का गेप के हिसाब से आउटपुट आ रहा है. मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ पेंट ब्रश के अंदर. 1 मिनट. सो द आउटपुट इज 0.3 0.6 and 0.9. So this is the output. This is the output. Okay, so but obviously we have some error in our code. We have some error. So how to calculate that? Okay, up to this हम लोग लास्ट सेशन में देख चुके थे. अब मुझे चेक करना था कि एरर क्या है. सो व्हाट आई कैन डू, अगर मैं लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करूं, लिस्ट स्क्वायर मेथड एरर यूज करें, सो गाइस इसको हम लोग बोलेंगे वाई हैट. जो प्रेडिक्टेड वैल्यू था उसको हम बोलेंगे वाई हैट. देन वी कैन डू वन थिंग, y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, एंड देन इनका हम लोग एवरेज निकालेंगे, मीन वैल्यू फाइंड आउट करके. सो दैट्स नथिंग बट एन ऑन एन एवरेज एरर. ओके, सो y आई हैव, y की वैल्यू हम लोग फिक्स कर देंगे कि हाँ दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू. ओके, y का वैल्यू पहले से हम फिक्स कर देंगे. सो हाउ एक्यूरेट अवर मॉडल इज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो मुझे एरर कंप्यूट करनी थी. ओके, मुझे एरर कैलकुलेट करनी थी. सो व्हाट यू कैन डू, हम एक प्लेस होल्डर बना रहे हैं, दैट इज y. x is a placeholder, y is also the placeholder. मतलब x and y placeholder क्यों, because उसकी वैल्यू एक ही बार मुझे इनपुट करनी. जस्ट टेक दिस पेंट ब्रश. x is nothing but a feature, y is nothing but a available label value. ओके, जो ऑलरेडी अवेलेबल था एक्चुअल वैल्यू. तो y की वैल्यू हम लोग पहले से फिक्स कर देते हैं. तो गाइस मुझे अभी लाइक स्क्वायर एरर फाइंड आउट करना था, मतलब एक्यूरेसी फाइंड आउट करना था. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक 1 सेकंड ग्राफ डेवलप करते हैं. लेट्स चेक दिस वन. So linear model in the sense what? Linear model in the sense what? Line number 41 में चेक करें, यहाँ पे linear model लिखा हुआ है. What is the meaning of linear model? Linear model मतलब predicted value. अपने equation के हिसाब से एक बार line number once again 38 पे चलते हैं. So line number 38 में linear model हमने specify किया था. That is actually predicted value is equals to wx plus b. So that is a predicted value. Linear model is a predicted value minus y. उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को स्क्वायर लिस्ट एरर वाला फंक्शन यूज करना था. सो दैट इज एक्चुअली नोन एज स्क्वायर डेल्टा. दैट इज एक्चुअली नोन एज स्क्वायर डेल्टा. सो आवर इक्वेशन विल बी लाइक linear model and here it will be a y. So that's my placeholder. Linear model is also a placeholder जिसकी वैल्यू जनरेट हुई है. ओके, और इनका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, इनका सब्सट्रैक्शन करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं. ओके, इनका सब्सट्रैक्शन और उसका स्क्वायर कर रहे हो. इसका हमने नाम रखा, अभी हमने सिर्फ स्क्वायर ही किया हुआ है, सब्सट्रैक्शन करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं, नाम रखा हमने स्क्वायर डेल्टा. द नेम ऑफ दिस वन इज स्क्वायर डेल्टा. ओके, इक्वेशन में पूरा यहाँ पे विजुअलाइज नहीं करा सकता, बट आई होप दैट इज क्लियर. ओके, सो हियर इट इज. सो दैट इज लाइक सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर. अब उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा. सो हमारे पास 4 वैल्यू थी y हैट की, मतलब प्रेडिक्टेड की, एंड ओरिजिनल वैल्यू दैट इज आल्सो 4 डिफरेंट वैल्यूज. तो इस स्क्वायर डेटा के अंदर भी मुझे 4 वैल्यू मिलेगी. ओके, उसके अंदर भी मुझे 4 वैल्यू मिलेगी. मुझे उसमें से एक सिंगल वैल्यू चाहिए. देन व्हाट आई कैन डू, मैं उसका मीन ले लेता हूँ. मीन मतलब एवरेज वैल्यू, सबका समेशन डिवाइड बाय 4. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन रिड्यूस सम. रिड्यूस सम, तो इसके ऊपर रिड्यूस सम कर देते, दैट विल बी अवर लॉस. दैट इज अवर लॉस. तो इसके ऊपर रिड्यूस सम करते हैं, तो दैट विल बी अ नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे हमने रिड्यूस सम किया, तो दैट इज अवर लॉस. ओके, तो दिस वन इज ए प्लेस होल्डर, दिस वन लॉस इज ए प्लेस होल्डर, द स्क्वायर डेल्टा इज ए प्लेस होल्डर, लीनियर मॉडल इज ए प्लेस होल्डर, वाई इज ए प्लेस होल्डर. ओके, सो फाइनली मुझे लॉस फंक्शन चेक करना. तो हम लॉस फंक्शन के लिए ये एक बार सब कुछ डेवलप कर लेंगे. उसके बाद हम इनपुट में क्या देंगे, वी विल जस्ट इनपुट एक्स वाई एक्स, बिकॉज ये लीनियर मॉडल आपको याद हो तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन ऐसा था. तो लीनियर मॉडल मतलब दैट इज यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था प्लस बी, एंड हियर it is actually connected with w, and here there is x. तो लीनियर मॉडल इस तरीके से कुछ कनेक्टेड था.
और मिला था। सो लीनियर मॉडल में यहाँ पे इनटू था, सॉरी यहाँ पे प्लस था। सो दिस x इज नथिंग बट ए प्लेस होल्डर एंड दिस y इज नथिंग बट ए प्लेस होल्डर। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करें तो आपको लॉस फंक्शन मिल जाएगा। एक्चुअल लॉस क्या है? इज दिस क्लियर विजय सर, मौलिक सर? So Yes. let me run session dot run. Yes, it is okay fine. So session dot run loss x का वैल्यू 1 2 3 4, y का वैल्यू 0 -1 -2 -3। ओके 0 -1 -2 -3। तो जैसे हमने पेंट ब्रश में ये भी देखा था, तो x का वैल्यू ये कुछ है, y का वैल्यू ये कुछ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हैट? तो y हैट का जो भी वैल्यू आएगा उस हिसाब से मुझे लॉस चाहिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस? दैट इज 23.66%। So 24% losses है, 24%, approximate 24% losses है। So that's quite big. So what is my requirement, sir? मुझे actually कैसे भी करके W और B का वैल्यू चेंज करना, because I cannot change actually the value of X and Y. X और Y का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। X is a featured value, Y is the actual value. ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू चाहिए थी W और B की। So our model is not accurate. Our model is not too much accurate. So what we can do, हम लोग को W और B का वैल्यू ट्यून करना पड़ेगा। सो आइदर हम लोग को एग्जम्पशन परफेक्ट चाहिए, तो लेट मी जस्ट मैन्युअली चेंज द वैल्यू ऑफ W एंड X। तो W का वैल्यू गाइस मैं रख रहा हूँ -1, B का वैल्यू रख देते हैं -1, Y और X का वैल्यू सेम रखते हैं, एंड लेट मी जस्ट वंस अगेन डू दिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने W और Y का वैल्यू कुछ अलग चेंज किया, मतलब अलग रखने के बाद उसको वंस अगेन एग्जीक्यूट कर दिया। असाइन नाम का फंक्शन यूज किया, दैट इज जस्ट यूज्ड टू चेंज द वैल्यू। Okay, that is just used to change the value. What is the W and B? W and B क्या थे guys? This is nothing but a variable. हाँ, constant नहीं था, वो variable था। ठीक है, जिसको हम लोग को in future train करना है। Now let me once again run this loss function. The answer is 0.0. Means our like the model is right now 100% accurate. 100% accurate. तो मुझे ये values चाहिए। Okay, W और B का वैल्यू मुझे -1 and 1 चाहिए respectively। ठीक है, तो बट उसके लिए मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। ये तो हमने मैन्युअली किया था, मुझे मैन्युअली नहीं चाहिए, मुझे